We come on the day 4, and day 4 of the peaceful meditation. We are exploring the Vigyan Bhairavi meditation, different techniques, 12 different techniques. So we have already explored 3 techniques. आज हम 4th technique हम explore करेंगे. So before we start, let us give gratitude. Gratitude तहे दिल से, giving gratitude to all our ancestors. तहे दिल से, giving gratitude to all gurus. तहे दिल से, giving gratitude to the entire Shrishti. Giving gratitude to entire all gods. ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी में फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील कर पाए. So we had explored many things about Bhagwan Shivji, and we understood how Shiv and Shakti is always together, consciousness and the energy. Shakti, the manifested energy, and the consciousness is always together. And हम उसको समझते हुए everyday understanding from consciousness and the Shakti, the manifested energy, is always together in everywhere. Let it be the universe, let it be the sky, the air, the plants, the nature, the being. हमारे अंदर हमारे each and every cell, हर एक cell में that consciousness and that energy is there, and that is why we are experiencing this life. Okay. So now today I will be going a bit deeper, and we will be understanding from the Pachmukhi. Okay. So you must have come across the magnificent the 5 faces of Lord Shiva. So the 5 faces of Lord Shiva stands for Ishana, which is the power of creation. Or then the second stands for the power of concealment. Aghora, which is the most misunderstood thing, is the power of dissolution. Okay. Vamadeva, it is called the power of sustenance. And Jyotya is called the blessing. Okay. सो द लिंग पुरुषा एक बहुत एंशियंट टेक्स्ट है, एंड एंशियंट टेक्स्ट में लिखा है कि ये जो 5 एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड शिवा है, इट सिंबलाइजेस 5 एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशंस. मतलब 5 बॉडी है हम ह्यूमन बीइंग की, 5 ब्रेथ है, 5 डायरेक्शंस है, 5 एलिमेंट है, 5 सेंसेस है, 5 कलर्स है, 5 एनर्जीज है, 5 डिविजन ऑफ टाइम है, एंड 5 ह्यूमन रेसेस है. मतलब इतना गहरा है ये कि अगर मैं इसको बताने के लिए जाऊं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो एक्चुअली जो उसको डीपर मीनिंग अगर आप देखोगे ना, तो हम नॉर्मली आकार में ही अटक जाते. we normally just get stuck onto the surface level, and when we pray only from an akar form. But when you will understand the meaning and you will go in deep, and when you will understand the deep, what is it trying to tell you, you will understand, my God, it is so beautiful, and everything is inside us. It is वो हमें बोल रहे हैं बच्चे अपने अंदर झांको, मैं आपके अंदर ऑलरेडी हूँ. आपको खाली मेडिटेशन करते हुए, साइलेंस टच करते हुए, टच मी, touch that essence which is there inside of you already. So that is how he's showing us the method, or the 112 methods. Okay. So now going forward and sharing the slide again. तो जैसे मैंने बताया, तो हम जब अपनी साधना चालू करते हैं और when we start our practices, so एक होता है कि just starting the practices just by via faith. Okay. और एक होता है where you're trying to understand and know the knowledge, and with the knowledge you are understanding and going forward. Okay. So there is a continuous spandan happening. Okay. The continuous spandan or the vibration that is happening is in the universe, in our being, and everywhere. Okay. So now there is shivlings, which are panchmukhis, the 5 mukhis. And there is a place called the Chandrashila, which is in the summit of Tungnath temple में उत्तराखंड में है, जहां से नैन देवी, त्रिशूल पर्वत, केदार पीक, ये सब दिखाई देते हैं, हिमालयन रेंजेस.
वहां पे ये 5 फेस के शिव का शिवलिंग है. ओके. Then there is this another temple which is in Muzaffarnagar, which is as old as the Pashupatinath temple in Nepal. Okay. और यहाँ पे जो शिवलिंग बना है एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन है जिसका नाम है जिसको बोला जाता है कसौटी. कसौटी वाले स्टोन से ये शिवलिंग बना हुआ है. और ये पशुपतिनाथ जो टेम्पल जो नेपाल में उतना पुराना उतना प्राचीन है. ओके. उतना ओल्ड है. So we will understand today what is it trying to say. Creation. Creation मतलब क्या? Creation मतलब खाली एक्सटर्नल नहीं हो रहा. क्रिएशन हमारे बॉडी हमारे बीइंग में भी हो रहा है. जैसे मैंने बोला हर सेल हमारे बॉडी के कुछ सेल्स जो काम कर रहे होते हैं वो व्हाइट ब्लड कॉपर सेल्स कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है. जो नहीं ठीक हो रहा होता है इट इज ट्राइंग टू टेक इट आउट. So we will understand what does this 5 dimensions is Lord Shiva trying to tell us and say ki bacha please reflect this, see here this, and this is where it's already there inside you. You just need to connect. Aapko khali connect karna. Okay. So the first one is a creation, which is the west face. Okay. And it represents all creation. जो भी creation है, beginning of all things. हर चीज की जो beginning होती है, that is associated with the creation. तो अभी आपने देखा होगा मून साइकिल ऑल्सो अमावस्या आता है. अमावस्या के बाद में न्यू मून होता है. सो दैट इज ऑल्सो अ क्रिएशन. इफ यू वुड से सपोजिंग यू प्लान टू डू समथिंग, आप कुछ बनाने का सोचते हो, so that is also a beginning, right? It's a creation. So the anything that you think that you want to create is taking you towards a new creation. For example, you think, okay, I've been doing this work and let me start my business. So even to start or even to think of from that dimension is a creation happening, and that creation is where the Lord Shiva's energy is. It is connected to the earth element. Earth element से वो connected. Now this state is the most fertile. It symbolizes the fertile and the nurturing of all the जिससे life emerge होता है. Okay. So now why is it fertile and nurturing? Is because when you're starting, obviously you will make ensure that the grounds, if you're starting a new business, you will ensure that आपको सब facilities मिले, सब आराम से मिले, and you will collect, and then you will plan how to execute, right? So that is why this state, it's is associated with the earth element, and it is a most fertile from where it emerges, where the life emerges. That means it's a start. And so it also signifies purity, new beginnings, and the ability to perceive the essence of things. So जब हम anything when we start, so we start looking it from a very deeper level, right? So we understand, and that is how it is happening. So हमारे लाइफ में अगर ये एप्लीकेशन मोड में, if you would want to understand any idea that comes into your mind to execute, चाहे वो in your family relation, or for example to join this class, that was an idea that came into your mind कि okay, let me do it and see. So this is a constant creation cycle, and ये creation होते हुए फिर sustain होता है, फिर वो खत्म होता है, फिर वापस से क्रिएशन होता है. सो इन शॉर्ट अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी में बात करूं, सो इट इज अ डायमेंशन ऑफ स्टार्टिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी with full faith and with full dedication. That is what you move. Okay. So the first was representing the creation. Okay. क्रिएशन हमारे बॉडी में, हमारे एक्सटर्नल में, हमारे लाइफ में, हर डायमेंशंस में. So that creation itself is the Shiv's energy. That Shiv energy gives you that momentum to start that creation. Okay. So that is one. Now coming to point number 2. Point number 2 is जैसे मैंने बोला वाम देवता, which is called north facing. North side उनका direction है, and it symbolizes the preservation. Okay. Preservation means sustaining, maintaining, and it is associated with the water element.
एंड ये वाटर एलिमेंट इट इज अ लाइफ गिविंग, मतलब वो हर चीज को जान दे रहा है। मतलब अभी आपने कुछ चीज क्रिएट करी तो उसको सस्टेन करना है, तो जब सस्टेन करना है तो यू विल पुट इन मोर एफर्ट, राइट? टू स्टार्ट एनीथिंग इज वेरी इजी, बट टू सस्टेन इट यू हैव टू पुट इन मोर एनर्जी. So it is life giving, and when you're giving more life to it, you're nourishing it more. That is how it is sustaining more. Okay. So the color is blue, and ये calmness and tranquility को represent करता है, flow of life. Because when you start something, you need to sustain it, and when you are sustaining it, so obviously वो flow of life में चलता जाएगा, right? Same wise हमारी human body में if something happens, कुछ हम over the time, supposing we start going to gym, so we are making our body more fitter, so then we keep on doing it, so we come into that flow of life. Okay. So the element that is associated with this is taste, and you are able to with this you are able to this like आप you are able to see the good and the bad, the sweetness of life and the badness of the life, and that is how this the second जो हम वाम देवता बोल रहे हैं symbolizes the preservation. So this is how it stands. Okay. Now हमारे लाइफ में how is it in application mode is, हमारे लाइफ में कुछ चीजें होती है जो काम करती, कुछ चीजें जो काम नहीं करती. For example, you started something and you saw that there was something that was working. For example, in relation, you saw somebody and you felt कि okay, this is really working for me, and something which is not working, right? So this is a stage where you understand yourself more deeper, and understand what stability do you want to bring into your life or in the relationship, and how you can enjoy that particular dimension and simply flow in that life dimension. Okay. So this is a second. Now coming to third. Third is all about preservation. Third is one second. Hold on. So third is all about agora. Okay. So agora is the south face. अभी agora is a very misunderstood concept. इसको मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में, नॉट एग्जैक्टली डिटेल, बट इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आई मेक यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू. ओके. तो इट इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन, मतलब कि जब कुछ चीजें आपने करा, फॉर एग्जाम्पल यू थॉट और यू हैव अ बिजनेस एंड यू थॉट ऑफ एक्सपेंडिंग इट समवेयर. सो व्हेन यू थॉट ऑफ एक्सपेंडिंग इट, फॉर एग्जाम्पल आपने मुंबई में चालू किया एंड यू डिसाइडेड टू स्टार्ट इन दिल्ली, but in Delhi you saw that things were not conducive enough, or it was not supportive enough. So what you will do, gradually you will close it down. But was it the end of something? No, it was a smart decision, because that was not working out, right? So when you dissolve, same wise abhi now if you start looking into your body, so even in our body there are certain cells which are working. Okay. And there are certain cells which grow old, but in the night our every cell is getting recharged, right? वो change हो रहा है. So the cells which are not working, the white blood copper cells take it out and it throws out, right? It's a continuous process. Same is what is happening in the nature. Okay. So anything that is not मतलब क्रिएशन हुआ, क्रिएशन के बाद में वो थोड़े समय तक रहा, फिर वो डिसॉल्व हो गया. ओके. सो कहने का मतलब ये, इट इज डिस्ट्रक्शन, रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली, एंड रिलीजिंग ऑफ द ओल्ड एंड मेकिंग वे फॉर द न्यू. नई चीज के लिए रास्ता खोलना है, राइट? तो जब ओल्ड चीजें काम नहीं कर रही है, तो हमें नई चीज के लिए स्पेस क्रिएट करना है. So this represents a fire element and it symbolizes power. पूरा power जो है, it represents that, and power of destruction, मतलब transform करने का जो energy है. अभी आप देखो फायर जो है, फायर एलिमेंट, जब आप कुछ भी चीज उसमें डालते हो तो आपकी जो भी वो चीज है वो ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? For example, water when it is solidified, it is ice.
बट आप उसको गैस पे रखो, हीट पे करो, तो वो वेपराइज हो जाएगा, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ द हीट, it got transformed into the energy got transformed into a vapor. So that is why the fire, with the fire element, you इसमें आपका sight, your sight, it represents sight, and you are able to see through the illusions and perceive the true nature of reality. मतलब हम जो ये माया में अटके हुए, now we are stuck onto this world via how it is visible to us, right? Via the five senses. But the real truth of anything that you see is not that. For example, a rose, when you see a rose, rose is blooming, but rose is blooming, there is an intelligence behind it via which that rose is blooming, right? So we are not able to see that intelligence which is operating in the rose to grow it. So when you start seeing it, so we you say, okay, this is a surface area, मेरे को surface area नहीं देखना है, I want to touch the supreme truth. So when you start going in more deeper and you start understanding, that is when you start you start doing the transformation inside. तो आप जितना अंदर जाते हो, जितना गहरा जाते हो, जितना आप अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, और गहराई में उसका ट्रू नेचर देखने की कोशिश करते हो, दैट इज व्हेन यू टच द रियलिटी. अदरवाइज वी फील, हाँ, we associate ourselves with this body or with this being or with this name and so on, right? So that association is just incomplete, because there is something beyond which is running out, जो हमारी ये बॉडी को चला रहा है. ओके, सो टू लुक बियॉन्ड द क्रिएशन प्रोसेस, ओके, मतलब हम जब उसकी गहराई में और अंदर जाते हैं, दैट इज व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स हैपनिंग. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि जब आप अंदर देखते हो, अपने अंदर की इनर डेमन्स देखते हो एप्लीकेशन मोड में, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द एंड इंट्रोस्पेक्शन करते हो अंदर, एंड यू स्टार्ट सीइंग व्हाट इज माय इनर डेमन्स, व्हाट इज माय इनर फियर, why do I react in every situation, what is that inside me. So that is when this third phase starts opening up for you. So it's a dimension which starts opening up, and then you're able to connect with that. Okay, this is the third. Now going to the fourth. Okay, the fourth is facing the east direction, and it is all about concealment. Okay, concealment means जो individual ego, हर इंसान का एक ईगो होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है. नाउ जस्ट इमेजिन, ये आपके सामने एक कोई पर्सन आया हु इज वेरी ईगोइस्टिक. ओके, तो आप सेंटेंस क्या बनाते हो, आप सेंटेंस बोलते हो, ये तो अपनी ईगो में उड़ रहा है, उड़ रहा है, हम ये बनाते रहे, ये तो अपनी ईगो में ही उड़ रहा है, इसका तो बिल्कुल अहंकार आसमान छू रहा है, आसमान छू रहा है. वाई डू वी से आसमान छू रहा है, वाई डोंट वी से धरती छू रही है, और कोई और डायमेंशन हम क्यों नहीं बोलते? बिकॉज जब ईगो आता है तो आप में एयर एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड वी स्टार्ट एसोसिएटिंग आवरसेल्फ कि वी आर नथिंग, वी आर टू अ डिफरेंट लेवल, एंड दैट ईगो destroys you. Why does it destroy you? Because your interaction with your loved ones or your approach to life changes so much that nobody likes to be around you, and you आप एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में रह जाते हो. Okay, so ego to the level of minimum, just being there is okay. Excess of ego is very bad. तो ईगो निकालने के लिए एक विसर्जन क्रिया है, विच आई विल टीच आफ्टर द एंटायर थिंग इज डन. आई विल टीच यू, विच आई डू एवरी डे, मैं रोज करती हूँ खुद. तो कई बार लोगों को ईगो क्या होता है, ईगो किसी को अपनी ब्यूटी का हो जाता है, ईगो किसी को अपनी नॉलेज का हो जाता है, ईगो किसी को धन लक्ष्मी का हो जाता है, ईगो किसी को अपने टैग का हो जाता है, अपने पोजीशन का हो जाता है, बहुत सारी ईगो है. तो विच एवर ईगो, ईगो इज अ फायर एलिमेंट जो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एंड वो इट हैज टच्ड, वो फायर बढ़ के वो इट हैज टच दी एयर एलिमेंट, एंड और उसको आपको कम करना है. कैसे? आई विल टीच यू.
सो द फोर्थ इज ऑल अबाउट कंसीलमेंट, ये आपका इंडिविजुअल सोल है। एंड ये वाला एलिमेंट जो है आपके जो थॉट्स एंड आइडियाज है, आपके लाइफ में जो थॉट एंड आइडियाज है उसको सिग्निफाई करता है, आपके माइंड को सिग्निफाई करता है। इसका कलर है येलो एंड इट रिप्रेजेंट्स नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। ओके, इसमें जो एलिमेंट जो सेंस ऑर्गन एसोसिएटेड है वो है टच। इट इज एबिलिटी टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस ही टेंजिबल रियलिटी। तो जब ईगो आता है तो आप एक अलग ही लेवल पे जाते हो, तो आप तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो करके। तो जो ईगो है वो लिमिटेशन ले आता है। तो ये जब आपका बैलेंस्ड होता है, जब ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, या परफेक्ट नेचर होता है, तो इट इज ट्रू नॉलेज। एंड इट इज आप यू विल नेवर टेल लाइज, आप बिल्कुल अपने सत्य के साथ ही रहोगे, विद योर ट्रूथ यू विल बी देयर। and it controls all the senses of your body and the mind। एंड अगर एप्लीकेशन मोड में अगर आप पूछो इसको कैसे ये एप्लीकेबल होता है, तो हमारे जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है, आप जब अपने अंदर आप झांकते रहते हो, कंटिन्यूसली यू आर सीकिंग नॉलेज, कंटिन्यूसली यू आप हर एक इमोशन के साथ में एक अवेयरनेस के साथ चीजें जब देख रहे हो, तो आप जब करने लगते हो तो आप ट्रांसेंड कर जाते हो अपनी लिमिटेशन को, और वो लिमिटेशन फिर आप अपने ट्रू सेल्फ को जान पाते हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ वन। ओके, तो हमारे सबके अंदर एक हिडन अनट्रुथ है, एक हिडन है, मतलब वो हीरा है हमारे अंदर, मगर वो हीरे का रास्ता हमें नहीं जाता, मतलब वो वी डोंट नो द वे। सो जब हम ये अहंकार निकालते हैं, हम अपने बाकी सारी एनर्जीज जो है वो सब निकालते हैं, एंड वी स्टार्ट गोइंग इनसाइड, you are able to explore this inner diamond। Okay, so now going to the fifth, the fifth is representing grace। Okay, all about grace। Okay, so now this is called the ishana, the zenth face इसको बोला जाता है, it is representing grace। तो ग्रेस मतलब क्या, इट इज फेसिंग अप। सो ईशाना इज फेसिंग अप। तो शिवलिंग में जो शिव जी का ये फेस है वो इट इज लुकिंग अप साइड। ओके, तो कहने का मतलब ये है, इट इज रिप्रेजेंटिंग लिबरेशन। लिबरेशन मतलब क्या, लिबरेशन मीन्स लिबरेशन आउट ऑफ द इल्यूजन दैट वी सी। हम कई बार, जैसे मैंने बताया ना, हम ये मन की रचित कहानियां है ना, उसी में अटके हुए और हम इसी माया में अटके हुए। सो व्हेन वी कम आउट ऑफ इट and we accept this fifth dimension of our being, so what happens is it creates a liberation। liberation means आप ये सारी चीजों से परे हो जाते हो, बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टिंग टू योर सोल, आप अपने सोल से कनेक्ट हो गए अंदर, बिल्कुल अंदर अच्छे तरह से। ओके, एंड दिस ब्रिंग्स एनलाइटमेंट इन योर लाइफ। So this dimension represents the space element, and it represents the vastness and the interconnectivity between all the things। ये क्लिस्टर क्लियर होता है, ट्रांसुलेंट होता है, बिल्कुल प्योरिटी, मतलब भगवान शिव जी की जो प्योरिटी, माँ गंगा जो फ्लो कर रही है वो प्योर नॉलेज, प्योर ट्रांसेंडल एक्सपीरियंस है करके। उसमें आपकी माइंड के जो लिमिटेशंस है वो नहीं है, लिमिटेशन से आप परे हो गए। सो नाउ फ्रॉम द जीवात्मा यू हैव मर्ज्ड इनटू द परमात्मा एनर्जी, and now that Paramatma energy is flowing from your being। Okay, इससे जो उनका सेंस ऑर्गन एसोसिएटेड है, दैट इज हियरिंग, एंड इट इज द एबिलिटी टू हियर वॉइस एंड रिसीव गाइडेंस। तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स वर्किंग नाउ इन एप्लीकेशन मोड। अगर आप मुझे पूछोगे, so this is a state where you have this moksha and liberation, the highest of divine consciousness। और वो डिवाइन कॉन्शियसनेस जब होता है तो आपके अंदर खाली ग्रेस एंड ट्रांसेंट ही होता है। फिर जो हम सोचते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल ये नॉलेज लिए, तो हम कुछ नहीं कर रहे, ये डिवाइन ग्रेस ही हमारे अंदर फ्लो हो रही है, और वो फ्लो होते हुए ही हम लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं।
तो ये डिवाइन ग्रेस फ्लो करने लगती है और आपके अंदर आप एक्सपीरियंस करोगे कंपैशन, forgiveness, acceptance, you will have lot of patience, you will have only grace, खाली ग्रेस ही होगा। और आप ये साइकिल ऑफ डेथ जो होता है ना, डेथ एंड लाइफ वाला साइकिल से परे हो गए हो, बिकॉज यू हैव टच द लिबरेशन। दैट मीन्स आपका सोल जो ये अर्थ पे आया था इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इट हैज ऑलरेडी लर्नड एंड इट हैज ट्रांसेंडेड to the level of you are in that divine grace. Now only the divine grace is flowing from your being, and it is no more now the limited soul that you're operating. आप एक छोटे सोल से नहीं काम कर रहे हो जो जहां पे हम पाव अटकाते रहते, but we are just flowing in that divine grace. So that is how it starts happening. Okay. So ultimately, what does Lord Shiva actually mean? तो जब हम अपना spiritual journey लेते हैं, we start walking the path, and when we start walking the path, then Lord Shiva is हमें जो awaken भी हो रहे हैं हम, या हम हमें लग रहा है हमें गहराई में अपने soul को अंदर जाना है, that also is Lord Shiva awakening us. He is saying, get up. And you have to get up and move towards, explore yourself. अपने आप को, अपने अंदर वो शिव तत्व को, वो माँ शक्ति की एनर्जी को आपको जानना है अपने आप को। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि हमारी जो एनर्जी जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग इन, राइट। तो हमारी जो ये नाड़ीज है उसमें कई सारी हैवी एनर्जीज आ जाती है, एंड उसके वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, पैटर्न हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, हम उसी में ऑपरेट करते हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस चालू करते हो, जैसे फिलहाल हम भगवान शिव जी के मंत्र से हम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एनर्जीज जो हैवी है दैट स्टार्ट्स क्लीनिंग इन, एंड देन दैट डिवाइन ग्रेस स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम योर बॉडी, एंड दैट कॉस्मिक एनर्जी, ईच वन ऑफ अस, हम सबके बॉडी में वो आ रही है। इट इज जस्ट दैट कि वी आर नॉट अवेयर। So with the meditation, you increase that content in your body, and that is how that cosmic energy starts flowing. Okay. So now we will start. We will go towards our meditation. And आज का हमारा meditation का तरीका ऐसे है कि आज का हमारा जो मेथड है वो ये है, 25th वाला मेथड है ये विज्ञान बहरवी तंत्र का। एंड इसमें ये वाला मेथड ऐसा है कि you have to consider your skin as a wall of empty body, क्योंकि we associate ourselves with body, and हम बॉडी से कनेक्ट करते हैं, तो हम अपनी रियल तत्व, हमारा रियल सोल में हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो दैट इज वाई ये वाला एक मेथड है, यू हैव टू विजुअलाइज दैट योर स्किन इज अ वॉल ऑफ अ एम्प्टी बॉडी, मतलब अंदर बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है। ओके। एंड यू हैव टू इमेजिन योर स्किन इज जस्ट लाइक अ वॉल टू एन एम्प्टी बॉडी, नथिंग इनसाइड, कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। And then you meditate, then you chant Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, and then you will reach a stage which is beyond meditation, मतलब आप उसमें घुल जाओगे। यू सो आज हमें ऐसे एक्सप्लोर करना है, तो हम चैंटिंग तो वैसे ही करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए ओम नमो शिवाय। हम चैंटिंग तो ऐसे ही करेंगे, मगर आपको खाली विजुअलाइज करना है कि आपकी स्किन इज जस्ट अ वॉल ऑफ एन एम्प्टी बॉडी, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है अंदर। एंड देन वी हैव टू कीप ऑन चैंटिंग इट, कीप ऑन चैंटिंग इट। तो आपको जब वो स्पेस देखोगे ना, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, जब आप वो देखोगे, देखते 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 यू विल मर्ज। इमीडिएटली नहीं होगा, but gradually over the time with continuous practice it happens. But today we are exploring this one. Okay. So I will put up the music and we will start. Just the this what I will.
ठीक है। ठीक है। बस 1 मिनट, वो ओपन नहीं हो रहा। जस्ट एक। तो आराम से बैठते हुए, आईज क्लोज, ध्यान मुद्रा, और इंटेंशन की सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे। पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा से कनेक्ट होते हुए हम अपना आज का मेडिटेशन करें। ओके, एक और बार एक्सप्लेन करते हुए, यू हैव टू विजुअलाइज योर स्किन इज अ वॉल ऑफ एम्प्टीनेस, एंड आपको वो चैंटिंग करनी है। ओके। Om
Oh.
अभी आप धीरे धीरे बहुत आराम से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज और अपने फुल बॉडी पे रोटेट। I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. And anybody who wants to ask or say, so please put. Anybody wants to ask or say? Feeling very calm and relaxed in life. Okay, thank you, Kripal ji. तो जैसे मैंने बताया, नाद ब्रह्मन से ही हर चीज ओरिजिनेट हुई है। तो ओम ओम से ही हर चीज ओरिजिनेट हुई है और उसी से सारी चीजें, हमारा जो शिव सूत्रा जैसे आप पढ़ रहे हो तो उससे आप अंडरस्टैंड करोगे कि सारा जो हमारा अल्फाबेट्स है, ग्रामर्स है, एवरीथिंग इज कम फ्रॉम देयर। एंड नाउ टुमारो वी विल अंडरस्टैंड दैट जो भगवान शिव जी की जो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड दी जो तीन शक्तिज है भगवान शिव जी की, वो कैसे हो रही है। हमने आज 5 डायरेक्शन की हमने देखी है ना। तो टुमारो वी विल अंडरस्टैंड और डीपर की मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज इट ट्राइंग टू टेल अस, हमें कहाँ ध्यान देने के लिए बोल। जैसे चैतन्य आत्मा है ना, कॉन्शियसनेस इज सोल, बट व्हाट इट इज, सो विल एक्सप्लोर ऑल दैट डिटेल। सो इच्छा शक्ति, दी इंटेंशन, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एंड दी विद्या शक्ति। तो हाउ इट इज एंड हाउ अपने हमारे लाइफ में एप्लीकेबल है और कैसे हम उसको ढूंढ सकते, टच हो सकते, दैट इज व्हाट वी विल। So Usha is like, initially I felt like sweating, but later on it got stable. Is it normal? हाँ, it's normal. आप करते रहो बस, है ना। So Supriya, thank you, thanks. Uh, okay, was getting a very nice fragrance around me. So yes, when you start doing these spiritual practices, कुछ ऐसी चीजें you experience which is not a rational logical mind will you can understand. You will experience एकदम से आपको कुछ खुशबू। So there are many things around us which we can't see with our naked eye, and they come to bless us when you smell एक अलग खुशबू, whereas you have not put any agarbatti. So they come to bless us. It's a energy which is coming to bless us for the practices that we are doing. So thank you, Deepa. Thank you, Usha. Thank you, everybody. Anybody who wants to speak? Yashika. एक लाइन बोलूंगी मैं। Yeah. शिव मुझ में समा रहे हैं, मैं शून्य हो रही हूँ। Beautiful, beautiful. बहुत ही सुंदर है। Thank यही you. लग रहा है बस। Thanks. Okay. Anybody Hello, else ma'am. who wants to say? Yeah, Yes. Yashika. You can unmute. ये मेरा फर्स्ट डे छूट गया तो अब कर सकती हूँ मैं। Yeah. एक दिन का छूट गया है। डू द सी द रिकॉर्डिंग, डू इट। वो जिस तरह मैंने बोला ना, वो स्पंदन को पूरे, वो स्पंदन को लेते हुए, आपके पूरा स्पंदन को लेते हुए जब आप कलर भी करोगे, वो कलर्स में भी स्पंदन है, वो वाइब्रेशन वो फील करते हुए जब आप करोगे, और जब आप ओम नमः शिवाय बोलते बोलते करोगे, इट्स अ, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड यू विल फील द इमेज इज टॉकिंग टू यू, यू विल एक्चुअली फील दैट। To do that and then give your feedback. How is it? Okay. Okay. Thank you. Hello, ma'am. Yeah. आपसे जर्नी स्टार्ट की है, जब से आपसे जुड़ी हूँ और आपसे ही जर्नी स्टार्ट हुई है। अब खुद से मिलना है और उसमें टिके रहना है। तो थैंक यू हिना जी। एंड आप ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हो, मतलब आपने तो सेकंड लेवल ओम भी किया है, और ये मैं आपने इसमें भी आप देखना एक अलग ही शांति, एक अलग ही अनुभव होगा आपको करके, क्योंकि हम समझ के कर रहे, हम खाली वी आर नॉट जस्ट डायरेक्टली गेटिंग इनटू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब करोगे ना तो हम फिर वो प्रैक्टिस में, अच्छा मैं क्या करूं, मैं ये करूं क्या, मैं वो करूं, वो
टेक्निकल चीजों में घुस जाते हैं। मगर जब आप नॉलेज समझते हो कि गहराई में, कि वो तो आपको ये बोल रहे यहाँ पे टच करो, इधर टच करो, तो फिर वो गहराई में आपको एक अलग आभास होता है। तो नाउ टुमारो व्हेन आई डिकोड दी शिव सूत्रा, एंड देन उसमें है knowledge is bondage. So how is that knowledge being bondage? Because हम तो सीख रहे, समझ रहे। So knowledge किससे bondage हो सकता है? So we will understand what exactly it is meaning to say. It is saying कि मैं कल ही बताऊंगी, मैं वो कल ही बेटर है। Okay? आपने दूसरा जो ओम चैंटिंग का था ना हाँ, क्लास, उसमें आपने बोला था कि आपकी मतलब मेरी एनर्जी बिखरी हुई है। तो मैंने इस पर गौर किया और थोड़ा समेटना शुरू किया कि कहाँ कहाँ बिखर रही है। तो वहां से ट्राई किया और एक पर लाने का प्रयत्न किया फिर मैंने। तो अभी थोड़ा उससे बहुत कुछ फेर पड़ा है, मतलब चेंज हो रहा है। अच्छा, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। जितना देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितनी हमारी एनर्जी क्लीन होगी ना, उतना ही आप डिवाइन के साथ वन होते जाओगे। मतलब हमारी थॉट की एनर्जी जितनी क्लीन होगी, जितना वाक शुद्धि होगी हमारी, जितनी हमारे जो कर्म कर रहे हैं वो क्लीन होगी, जितनी हमारी 72,000 नाडीज जो है वो पूरी क्लीन होगी, एंटायरली क्लीन होगी, you will start experiencing a different energy shift in your being. अभी क्या है कि वो clogged है, मतलब इसका perception, ये pattern, वो pattern, ये साउंड वाइब्रेशन, वो सब में वो जम्बल्ड अप है। जितनी क्लीन होगी उतने ही आप अपने आप में वन टू वन आप होते जाओ। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, एक्सपीरियंस करो एंड करते जाओ बस, है ना। थैंक यू एवरीबody, एंड we'll meet tomorrow. एंड हर हर महादेव। हर 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 महादेव। बाय, टेक, थैंक यू संगीता।